Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Vanshika, and in this video we are going to review something very mysterious, full of thrillers, suspenses and whatnot. So this video is especially for all the thriller lovers out there. So in this video we are going to discuss about this trilogy, A Good Girl's Guide to Murder by Holly Jackson. And I recently completed this trilogy, all the three books, and we are going to have a discussion on this in this video. So let's start. So before starting, let me tell you why it took me so long to start this book. Although I completed this book बहुत जल्दी like comparatively मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी मैं तीनों books को पढ़ लूँगी, but yes, I completed it काफ़ी जल्दी. And the reason I picked these books because I am a core thriller lover. So I love thrillers, suspenses, books full of mysteries and all that. So whenever I used to search for something of that type, I always get recommendation of this book. But I kept avoiding it because this is a trilogy, and trilogies kind of scared me because you have to complete all the three books to know everything. But this one finally I picked and I read, and I'm super proud of myself that I completed this book. So let's discuss one by one each and every book. So before starting, let me tell you, this is not a kind of trilogy you can read it standalone. You have to read it line by line to understand it properly. It's like once you complete the first book, then second, then third, then only you will understand the storyline properly, like the incidents and the characters are very much connected in all the three books. So if you are planning to read this, please read it as it is, like the first one first, then the second one and the third one. So let's discuss. The first one is A Good Girl's Guide to Murder. This is the very first book. The second book is Good Girl, Bad Blood, and the third one is As Good as Dead. All these three books are worth the hype, I would say. Now I'll tell you why. So there is a story of 17-year-old girl, Pip Fitz-Amobi. She's just 17-year-old, and for her school project, she took a 5-year-old closed case of Andy Bell murder case, and she, for her school project, investigate the whole case. And this book is completely on the investigation, like who is the real murderer of Andy Bell, what happens, and the characters, the plot, and everything is so fresh, unique. This is something which I read after, like very unique. पढ़ के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, and बहुत सारी चीज़ें यूनिक है इसमें. जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो इंटरव्यूज लेती है, उसकी जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन, एंड उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मजा आती थी. सो दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड काफ़ी कुछ नया यूनिक पढ़ने को मिला मुझे इसमें, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस, ऑफ कोर्स यू कैन, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड समथिंग न्यू. लाइक थ्रिलर्स एंड सस्पेंसेस में भी द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स आर वेरी यूनिक, एंड द मोस्ट यूनिक थिंग ऑफ दिस बुक is that the girl who's just 17-year-old, she is investigating the case, and there is a complete story that how she investigate the case without taking help of any expert, and throughout this investigation, how she made her good friends, and one among them is Ravi, and Ravi's elder brother Sal Singh is also involved in this case. And then what happens, their chemistry, and believe me when I'm saying this, the character of Ravi and Pip, I love their character. They both are just the perfect teenager, and in this book their chemistry and everything, how it evolves, and Ravi is such a good boy, and I really like the character of Ravi and the way Holly Jackson has described both of them, their chemistry and their friendship and everything. I really like all the things, the plot and everything, and to know the whole story, who is the murderer of the Andy Bell, and what happens, पेपर उस केस को सॉल्व कर भी पाती है या नहीं, एंड कौन कौन उस केस में उसकी मदद करता है, और कौन रियल हो करके भी रियल नहीं है. एवरीथिंग लाइक दिस बुक इज फुल ऑफ सस्पेंसेस, एंड दिस इज वेरी यूनिक, आई वुड से. Like the plot, the storyline, everything is different from the usual books जो हम पढ़ते हैं. So I think it is worth the hype. The first book, basically, I really like the first book, and because I know the storyline of the first book, and so when I read the second book and the third book, like it was very easy to connect the plots and characters. So this is all about the first book, and the cover of the books also. You see, there is a white cover, and there is this red cover in the second book, and the third book is just opposite of all these, the black cover. So the cover also tells you a lot about this. Once you complete reading all these three books, you will get to know कि इन books का नाम ये क्यों दिया गया है, इनका टाइटल ये क्यों है. So it's a full of mysteries and suspenses. And first book में मुझे ज़्यादा लगा था. Now talking about the second book. Second book I would rate like it's okay, so okay, not that special, not that वो, maybe because I read the first book और उसमें already मुझे इतना कुछ fresh read करने को मिल गया था, इसलिए मुझे second book उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी. Second book मुझे बहुत ज़्यादा slow paced लगी. First book में जैसे Pip जो थी with her friends, especially with Ravi, मिल करके एंडी बेल का केस सॉल्व करने की कोशिश करती है, वैसे ही सेकंड बुक में देयर इज अनदर केस, उसको भी पेप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करती है. एंड वो देखने लायक है कि वो कर पाती है उस केस को सॉल्व की नहीं, एंड व्हाट रियली हैपेंस. फॉर दैट यू हैव टू रीड ऑल दोज बुक्स, एंड दिस इन दिस वेरी सेकेंड बुक आई फील कि बहुत ज़्यादा स्लो पेस में किया गया है, मे बी क्योंकि मैं इसको पढ़ चुकी थी पहली वाली को, एंड मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पा रही थी, एंड नो क्या होता है फाइनली स्टोरी में. यू हैव टू रीड ऑल दीज बुक्स, एंड द सेकेंड बुक इज़ नॉट दैट परफेक्ट एज द फर्स्ट वन, मे बी बिकॉज फर्स्ट वन में ऑलरेडी हमें वो सारे सस्पेंसेज एंड
फीलिंग्स हम फील कर चुके होते हैं, जो कि हमें सेकंड बुक में दोबारा फील करवाने की कोशिश की जाती है, बट उतने अच्छे से नहीं, बिकॉज you know what I'm saying, right? So I would say first one is of course 4.5 from my side, and second book is 3. And now talking about the third book, and जो hype थी ना इस third book की, like once you read the first and second book and you'll start reading the third book, and this is the longest among all these 3 books. इसमें कुछ 550 पेजेस हैं, एंड ये उतनी मोटी नहीं, इतनी थिक नहीं है जितनी ये है. सो या नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, द थर्ड वन, एज गुड एज डेड. इस बुक की इतनी हाइप क्यों थी मुझे नहीं समझ में थी, एंड इस बुक को पढ़ने के लिए हमें वो दोनों बुक पहले कंप्लीट करनी पड़ती हैं, एंड उसके लिए मैंने वो दोनों बुक्स पढ़ी, एंड आई रियली लाइक द फर्स्ट वन. अब मुझे फर्स्ट वन से अच्छी नहीं लगी, ये पता नहीं इस बुक की क्यों इतनी हाइप थी. उन दोनों बुक्स में क्या हो रहा था कि पिप वॉज द वन हु वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द अदर केसेज, और वो दूसरों को सेव कर रही थी, बट इस बुक में पिप हरसेल्फ इज इन द डेंजर. तो अब देखना होगा कि कैसे उसे कौन बचाता है. सो शी इज इन डेंजर, एक सीरियल किलर है, ही वांट्स टू किल हिम, लाइक वो उसे थ्रेट देता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अगेन एंड अगेन. तो एंड ऑल्सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट. सो मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि लाइक बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया गया है, जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होती तो भी काम चल जाता है, एंड बुक को और कम पेजेस में भी एंड किया जा सकता था. सो दिस इज़ व्हाट आई फील, बट या इट्स लाइक वर्थ रीडिंग, बट फर्स्ट वन इज स्टिल माई फेवरेट आफ्टर रीडिंग ऑल दीज 3 बुक्स. मुझे ऐसा लगा था कि मे बी थर्ड बुक मेरी फेवरेट बन जाए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज 3 बुक्स, क्योंकि थर्ड बुक की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हाइप थी, एंड बिकॉज आई लाइक थ्रिलर्स, एंड I have already told you so many times. So now let's just talk about the Netflix series based on this book, A Good Girl's Guide to Murder. Yes, इस फर्स्ट बुक में ही एक सीरीज़ बनी है नेटफ्लिक्स में, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर. सो उस सीरीज़ के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि उसमें जो कैरेक्टर्स चूज़ किए गए हैं, दे आर सो परफेक्ट. लाइक दी कैरेक्टर प्ले, लाइक आई डोंट नो द रियल नेम, बट रवि, पिप एंड उनके जो फ्रेंड्स, उनके जो कैरेक्टर्स, जो भी एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, दे आर जस्ट परफेक्ट इन देयर रोल एंड एवरीथिंग. आई रियली लाइक देयर कैरेक्टर. उन्हें वैसा ही दिखाया गया है जैसे वो बुक में है कैरेक्टर, इन द सेंस की लाइक दैट फिजिकल अपीयरेंस, बट व्हेन इट कम्स टू दैट एक्चुअल नेचर, उसमें उस नेटफ्लिक्स सीरीज़ में बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखाया गया जैसा एक रीडर जब बुक को पढ़ता है और इमेजिन करता है कि कैरेक्टर्स ऐसे होंगे, उनका नेचर ऐसा होगा, वैसा उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है. इवन उसमें काफ़ी सारी जो स्टोरी लाइन्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उन्हें भी चेंज किया गया है. कुछ इवेंट्स है ही नहीं बुक में, वो भी उसमें दिखाए गए हैं. सो द सीरीज़ इज जस्ट 6 एपिसोड की, एंड please don't watch it because it's not worth your time. It's total disappointment, I would say. So instead read this book, and season 2 भी काफ़ी जल्दी आने वाला है. लेट्स सी सीजन 2 कैसा होता है. वैसे सीजन 1 देख करके मुझे सीजन 2 से तो ज़्यादा कुछ होप है नहीं. मे बी एज फार एज मुझे सुनने में मतलब मैंने पता किया, सर्च आउट किया है, तो मुझे इतना पता चला है कि दिस ट्रिलॉजी इज रिटन इन 2 इंग्लिश नेटिव. सो फर्स्ट वन इज ब्रिटिश एंड द सेकंड वन इज इन अमेरिकन इंग्लिश. तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में लिखी गई है. सो जो वो सीरीज़ बनाई गई है वो अमेरिकन इंग्लिश वन से ली गई है, एंड उसमें इवेंट्स कुछ ऐसे हैं. सो आई डोंट नो, मतलब मैंने वो तो पढ़ी नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया अगर उसमें ऐसे कुछ प्लॉट्स एंड सीन्स को चेंज भी किया गया होगा उसके बेसिस में बनी है. सो मैंने उसको नहीं पढ़ा है, बट बेस्ड ऑन दिस वन जो मैंने पढ़ी है, इंग्लिश वन जो मैंने पढ़ी है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जैसा सीरीज़ में दिखाया. कुछ भी नहीं इन द सेंस कि बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं जो उसमें दिखाई गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बुक में हैं जो उसमें नहीं दिखाई गई हैं. कैरेक्टर्स के नेचर के साथ किया गया है, लाइक रवि इज द कैरेक्टर हु ऑलवेज सपोर्ट पिप, बट उसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है. एंड देयर आर सो मेनी सीन्स जो कि बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं है, बट उसमें ऑल ऑफ अ सडन लाइक इफ तुमने इस बुक को पढ़ा है तो तुम उसको समझ सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस बुक को नहीं पढ़ा एंड यू ओनली वांट टू सी दैट सीरीज, तो मुझे लगता है कि तुम्हें स्टोरी भी समझने में दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज. वी कांट डू एनीथिंग, वी ओनली कैन गिव रिव्यू. सो हियर आई एम गिविंग यू द रिव्यू ऑफ द सीरीज, द बुक, द ट्रिलॉजी एंड एवरीथिंग. सो instead of watching that series, I would say you should read this book. So that's pretty much about this trilogy, this Netflix series, सबका review and everything जो मैंने search out किया जितना मुझे पता चला. So yeah, that's pretty much about this video, this trilogy, and I really like this first one, and then of course the second one, and at last the third one. Maybe second one and third one are overhyped, but the first one is not at all overhyped. If you want to read these books, please read. These are worth it. It's completely my opinion. Like the review is completely based on what I felt while reading it. Maybe you can feel something else. Your opinion varies, so it's not a matter of that. So start reading these, and it's worth the hype. At least read the first one, and then you can decide कि तुम्हें आगे पढ़ना है कि नहीं. But yeah, the storylines and everything are so good, so perfect. Maybe मैंने ही ज़्यादा कुछ होप रख ली थी इसका ओवर, जितना हाइप बना के रखा था इंटरनेट में एवरीवेयर. मुझे हमेशा सजेशंस में अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर मिलती थी, एंड उसमें भी थर्ड बुक का इतना हाइप बना के रखा था लोगों ने कि वंस यू कंप्लीट रीडिंग दी फर्स्ट 2 बुक्स, दी थर्ड बुक इज समथिंग अमेजिंग. तुम्हें बहुत कुछ अलग एंड बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा. मे बी इतना ज़्यादा मैंने सुन लिया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, इसलिए हो सकता है अगर मैंने नहीं सुना होते, रिव्यूज़ नहीं देखे होते, तो फिर हो सकता है मुझे लगती. बट नो, स्टिल मुझे फर्स्ट वन बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज द प्लॉट्स, द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग इज सो यूनिक, सो रिफ्रेशिंग, एंड मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत बार बोल चुकी हूँ. सो या, this one is like absolute read for all of you, and if you have to start this trilogy, if you're planning to read this trilogy, from my side it's like a big yes, you can start, you should read these books, because ये बहुत ज़्यादा यूजुअल बुक से हट के हैं, द स्टोरी लाइन एवरीथिंग. क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची होती है जो कि सिर्फ 17 साल की होती है, जो कि सेकंड बुक में 18 साल की हो जाती है, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है. शी स्टार्टेड हर ओन पॉडकास्ट ऑल्सो इन द सेकंड बुक, एंड सेकंड बुक स्टार्टिंग में यू विल गेट टू नो कि वाई एंड हु नेम दिस अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर. लाइक उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ ऑल दीज बुक्स एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक
it's a good unique read you should start. And if you are so much into thrillers and suspenses, maybe तुम फर्स्ट बुक की भी स्टोरी में गैस कर पाओ कि कौन रहता है एक्चुअल मर्डरर एंड हु इज द किलर एंड एवरीथिंग. बट इफ यू आर नॉट एंड यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट एंड तुम बस स्टार्ट करना चाहते हो कुछ थ्रिलिंग ऐसा पढ़ना, सो दिस इज अ गुड रीड, क्योंकि स्टोरी लाइन इज एंड दी राइटिंग पार्ट इज रिटन ब्यूटीफुली. बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, एक भी ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है जिसका मतलब तुम्हें समझना है. इट्स सिंपल ब्रिटिश इंग्लिश. सो यस, यू कैन स्टार्ट. So yeah, this was my review of this trilogy, A Good Girl's Guide to Murder, and yeah, that's pretty much about the video. Hope you like this video. If you have already read any of these books, then please do let me know in the comment section. And every Sunday I will be giving you this long form video of a book and its review and everything related to that book. So thank you so much for watching this video, and please do like this video. Please subscribe to my channel, share with your friends, and do comment in my videos. Thank you for watching. Bye.